Good morning, children. This is Karan, sir. I hope you all are well and safe with your families amidst this pandemic of coronavirus. So, today I am going to start a new chapter of Geography, Class 6. So, this chapter is going to be for the Class 6 student, and the chapter's name is The Earth in the Solar System. The Earth in the Solar System. This will be the chapter first of Geography Class 6. I request all the students to please go on page number 107. And before starting this chapter, I should remind you that I have already completed History Chapter 1, Introducing History, Civics Chapter 1, Diversity, and today it is going to be the third chapter of your book, that is Geography Chapter 1, The Earth in the Solar System. I request all the students, those who have not completed their fair notes, please check it in the group. I have already provided you the PDF of the question answers of both the chapters, and those who have completed it, they deserve a thanks from my side. And those who have not completed, they should do it as soon as possible. And I request all the students, when you are writing your fair notes, please send it in the group with your name and subject name as well, so that the teacher will find it easy to check it and to understand. Okay, so let's get started. I hope you all are on the same page. The Earth in the solar system. What does that mean? It means that the entire solar system, including all the planets and all the heavenly bodies, including the sun, the center of the solar system. All the objects that we see in the sky are called celestial bodies or the heavenly bodies. They include stars, planets, satellites, asteroids, meteoroids, and comets. Do you know how these celestial bodies were formed? जितनी भी तरह की चीजें हम आसमान में देखते हैं दिन में अथवा रात में, ये सारी ही चीजें जो चमकदार तारे हैं, सूरज है, चंदा है, जितनी भी चीजें हैं, इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज यानी खगोलीय पिंड कहते हैं। इनमें सभी तरह के ग्रह, उपग्रह, जो भी एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स या मेटेरॉइड्स हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्स. व्हाट इज यूनिवर्स? मोस्ट एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स स्टार्टेड अबाउट 15 बिलियन ईयर्स अगो विद द जाइगेंटिक एक्सप्लोजन ऑफ अ कॉस्मिक एग, द बिग बैंग. बहुत सारे हमारे जो खगोलविद हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, इनका ऐसा मानना है कि धरती का और इस पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण था, ये निर्माण शुरू हो गया था 15 अरब वर्ष पहले, जिसमें कि एक बहुत बड़े बिग एग में एक बिग बैंग हुआ था, यानी बहुत सारा बड़ा सा एक विस्फोट हुआ था पूरे ब्रह्मांड में. विस्फोट से छिटक कर बहुत सारी चीजें यहाँ वहां चली गई. ड्यू टू द एक्सप्लोजन एटम्स एंड देयर मॉलिक्यूल्स वेर फॉर्म्ड. These molecules came together and formed the giant clouds of gases and dust particles called nebulae. बहुत सारे ये विस्फोट इतना जोरदार था कि इसमें से निकल कर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और गैसेस आपस में चिपक करके ये बड़े बड़े गैस के जाइंट गैस बॉल्स का इन्होंने निर्माण किया, और जिसके वजह से ईच नेबुला हैड इट्स ऑन ग्रेविटी एंड स्पिनिंग मोशन. सभी जो नेबुला बना उसमें एक प्रकार का जो परिक्रमा था, एक घूर्णन गति थी, और साथ ही साथ सभी में अपना एक क्या था? एक ग्रेविटेशनल फोर्स था. सभी में किसी चीज को अपनी ओर खींच लेने की शक्ति थी. इस तरह से ये एक धारणा है, मान्यता है, which may be correct or which may not be as well.
Within the nebula, the atoms were attracted to one another and in the process collided with each other at a tremendous speed. बहुत तेज गति से एक दूसरे से वो लोग आपस में वो चीजें जो टकराई. This gave out an enormous amount of heat which resulted in the birth of the glowing bodies such as stars. Our sun, which is a star, was born about 4.6 billion years ago. तो आपस में इतना गति से ये टकराई जिसकी वजह से इनमें क्या हुआ कि एक बहुत जबरदस्त आग लग गई और ये ग्लोइंग पार्टिकल्स बन गया, यानी चमकते हुए हीट और ऊर्जा देने वाला एक ऐसा बॉडी बन गया जो भी जितने भी स्टार्स है इसी तरह से फॉर्म हुआ. इवन आवर सन का जो उत्पत्ति है इसको माना जाता है 4.6 अरब वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था. मिलियंस ऑफ द स्टार्स टुगेदर मेक अ गैलेक्सी. लाखों करोड़ों जो है तारे मिलकर के एक गैलेक्सी का यानी तारामंडल का निर्माण करते हैं. सेवरल मिलियन गैलेक्सीज मेक अप अ यूनिवर्स. और सब बहुत सारे तारामंडल मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं. द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग एज इट्स न्यू स्टार्स आर बीइंग बॉर्न. अभी भी हमारा जो गैलेक्सी है, जैसे जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, जिस गैलेक्सी का पार्ट हमारा अर्थ है, इसका नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी और द आकाश गंगा कहते हैं इसे हिंदी में. तो the galaxy to which our solar system belongs is called the Akashganga or the Milky Way galaxy. On a clear night, you might be able to see the Akashganga. It appears as a faint band of light across the sky. जब चांदनी रात रहेगी, जिस दिन पूर्णमासी की रात रहेगी, उस दिन आप देखेंगे आसमान में ये आकाशगंगा आप देख पाएंगे. We measure distances in the universe in light years. Light year क्या है? एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार होती है रोशनी की, लाइट की. और ये लाइट अगर साल भर चलेगा, 1 साल तक ये इसी गति से जाता रहे, तो जितनी दूरी तय करेगा उस दूरी को हम लाइट ईयर कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं. ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 3 लाख पर सेकेंड कवर्स इन अ ईयर. द डिस्टेंस विच इज कवर्ड ट्रेवलिंग एट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बाय अ लाइट is known as a light year distance. Stars and constellations. Stars मतलब हो गए तारे, constellation तारा समूह, तारों का एक समूह. Celestial bodies that produce their own heat and light are called stars. ऐसी खगोलीय पिंड जो अपना खुद का रोशनी तथा ऊर्जा देते हैं, इसे हम तारा कहते हैं. They appear as tiny specks in the sky because they are very far away from us. ये बहुत ही छोटे छोटे हमें दिखते हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमसे दूर हैं. Stars twinkle because the light they emit comes down to us through different layers of air. बहुत सारे हवा की परतों को पार करता हुआ हमारे तक पहुंचता है और बहुत दूर होने की वजह से इसका जो लाइट है वो हमें कम दिखाता है. और रात को हम समझते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं, बहुत ही छोटी सी रोशनी का एक सोर्स दिखता है हमें तारों में, बट एक्चुअली वो बहुत ज्यादा रोशनी है और बहुत दूर से आ रही है, इस वजह से हमें बहुत कम दिखती है. द सन इज अ स्टार टू. सूर्य भी हमारा क्या एक तारा ही है. इट इज जस्ट वन अमंग द मिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द यूनिवर्स, बीइंग नियरर टू द अर्थ देन द अदर स्टार. इट लुक्स बिग एंड ब्राइट जस्ट लाइक अ बॉल ऑफ फायर. ये बहुत ज्यादा समझ लो आग का गोला के जैसा समझने में आता है और उसी तरह का ये दिखता है. So, one of the constellation is the Ursa Major or the Great Bear. इसी तरह का constellation क्या है? देखिए constellation क्या है? Excuse me. Constellation बोलते हैं तारा समूह. जब तारे आपस में मिलकर एक विशेष आकृति का निर्माण करते हैं उन्हें हम constellation कहते हैं. इसी तरह का एक जो है बड़ा सा तारा समूह है जिसका नाम उर्सा मेजर है या ग्रेट बियर. ये दिखने में एक भालू जैसा निर्माण आकृति का निर्माण करता है, भालू जैसा दिखता है, इसलिए इसे ग्रेट बियर भी कहा जाता है. Which can be easily recognized in the northern sky. ये आसमान में उत्तर की दिशा में हम देख पाएंगे एक भालू की आकृति बनाते हैं कुछ तारे मिलकर आपस में. इट इज कॉल्ड द सप्तर्षि, 7 sages in इंडिया. भारत में इसे 7 ऋषियों का समूह कहते हैं, सप्तर्षि तारा कहते हैं. 7 ऋषि हैं, कहा जाता है कि 7 भाई थे, 7 ऋषि थे. उन लोगों ने जब मरणोपरांत वो लोग तारा का रूप ले लिया उन लोगों ने, तो ये सप्तर्षि तारा है. The 7 stars in the constellation form the shape of a big spoon. और 7 ऐसे कुछ है जो एक बड़ा सा चम्मच के जैसा आकृति बनाते हैं
The two stars at the end of this constellation are called the pointers. इन्हें pointers का नाम दिया गया है, केंद्रक कहलाता है। They always point towards the north. ये सब हमेशा नॉर्थ की ओर दिखाई देते हैं। The brightest star in the sky is the pole star or the north star. एक इधर का उत्तरी तारा है जिसे हम पोल स्टार के नाम से जानते हैं, और ये आसमान में बहुत ज्यादा ब्राइट चमकता है, बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है। It appears to remain in the same position in the sky and all over the stars and the constellations seem to revolve around it. सभी तारे इसके आसपास घूमते हुए दिखते हैं, परंतु ये एक ही जगह फिक्स रहता है। आप देखते होंगे आसमान में जब एक पूर्णमासी की रात को आप देखेंगे या अमावस्या की रात को, सबसे ज्यादा ये चमक रहा होता है पोल स्टार। Used to determine the north direction during the night with the help of the north star. Ursa Minor, Orion, Canis Major and Hydra are some of the well-known constellations. ये सब कुछ कॉन्स्टेलेशन तारा समूहों के नाम हैं, जिनमें उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, ओरायन, कैनिस मेजर एंड हाइड्रा, ये सब नाम हैं इनके। सोलर सिस्टम, अब हम अपने समझेंगे हमारे सौर मंडल को। द लैटिन वर्ड सोल मीन्स द सन, thus the solar means belonging to the sun. सोल मतलब सूरज और सोलर मतलब सूरज से जुड़ा हुआ, सूरज से संबंधित सोलर। जैसे It consists of the sun and at the center, सूरज इसके मध्य में एकदम बिल्कुल केंद्र में है, बीच में है। The 8 planets, their satellites and their asteroids, meteorites and the comets, all of which move around the sun. Let's find out a little more about them. अब इनके बारे में हम थोड़ा और जानते हैं क्या क्या चीजें हैं। Sun, the sun is at the center of the solar system. अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, मान लिया कि ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें बहुत सारे हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो ये हमारा मानना पड़ेगा ये सूरज है बीच में, सबसे बीच में जो है वो सन है, इस तरह का हमें मानना पड़ेगा। The sun is at the center and all other planets revolve around it. सभी जो ग्रह हैं इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। मान लीजिए कि मरकरी है, वेनस है, अर्थ हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया, तो ये अर्थ इस तरह से पूरा सूरज के चारों ओर चक्कर काटता रहता है, जिससे एक चक्कर पूरा करने में 365 डेज का टाइम। और धरती अपने भी जगह पे घूमती रहती है, एक टॉप स्पिन के जैसा, एक लट्टू के जैसे ये घूमते रहती है, लट्टू के जैसा ऐसे ऐसे घूमते रहती है। इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम रोटेशन। और जो सूरज के चारों ओर घूमता है वो परिक्रमा क्या कहलाती है? रेवोल्यूशन। तो दिस फोर्स होल्ड्स द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन देयर फिक्स्ड पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। क्या है? इट हैज अ ह्यूज मास व्हिच गिव्स अ वेरी पावरफुल फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सूरज बहुत ही विशाल है, इसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा और ताप है, साथ ही साथ इसका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके पास बहुत ज्यादा अपनी ओर खींचने की शक्ति है, जिसके वजह से सभी ग्रह घूम रहे हैं और धरती भी घूम रही है, और एक ही दूरी पर ये घुमाता रहता है सबको, क्योंकि इसने अपनी ओर खींचे हुए, सूरज अपनी ओर खींच रहा है, धरती अपनी ओर खींच रही है, इसलिए एक फिक्स रास्ते पर घूम रहा है, न इधर जा रहा है और न उधर जा रहा है। ये इसका कहने का मतलब। The sun is made up of intensely hot burning gases, mainly hydrogen and the helium, and has a surface temperature of about 6000 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आप जानते हैं, पानी को अगर हम चूल्हे पर चढ़ाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलने लगता है, दूध 140 डिग्री सेल्सियस में उबलने लगता है, परंतु आप कल्पना कीजिए 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सूरज के सरफेस में। यदि हम बात करेंगे इस पूरे सरफेस की, इसका जो टेम्परेचर है, its temperature is 6000 degrees Celsius. 6000 degrees Celsius. It is too hot. You can't imagine how hot it is. इसमें कोई भी चीज प्रवेश कर पाने का, उस ताप को सह पाने का किसी में कोई क्षमता ही नहीं, कोई भी चीज जाएगी गल जाएगी। The sun is made up of, okay, so 6000 degrees Celsius is the sun's temperature, the surface of the sun temperature. It is the vital source of the heat and light energy required for all forms of life on the earth. धरती पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, including men and plants,
सभी को सूरज से ही रोशनी, सूरज की ही ऊर्जा से हमें ऊर्जा मिलती है। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्लांट सूरज के रोशनी के मौजूदगी में ही करते हैं। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है हमारे भारत से, हमारे दुनिया से, हमारी पृथ्वी से, इस ग्रह से 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अस। लगभग 500 सेकंड का टाइम लगता है हमारे धरती पर पहुंचने में। एक बार 500 सेकंड यानी 8 मिनट का समय लगता है सूरज की रोशनी धरती पर आने में। सुबह जब सूरज उगता है वहां से 8 मिनट लगता है धरती पर आने में, और जबकि लाइट का स्पीड क्या, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चलता है, तो इसमें 480 यानी 500 सेकेंड लगता है, लगभग 8 मिनट लग जाता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से रोशनी आ रही है, इसके बावजूद 8 मिनट का लंबा समय लगता है। This light is reflected by the planets and their satellites. We are thus able to see them in the sky even though they do not have their own light. तो सूरज की रोशनी जब धरती की ओर आती है तो रास्ते में पड़ने वाले जितने भी खगोलीय पिंड उन सबको चमकाती है, उन पर रोशनी पड़ती है। इसलिए जिनका अपना रोशनी नहीं भी है उनको भी हम देख पाते हैं। कैसे? रात को आप चांद को देख पाते हैं। चांद को देख पाने का कारण यही है कि सूरज की रोशनी पड़ती है जिससे वो चमकता है और वो चमकता हुआ हमें दिख पाता है। सपोज दैट रात के अंधेरे में आप एक बाल्टी पर एक टॉर्च जलाइए। बाल्टी का अपना रोशनी नहीं है, परंतु टॉर्च जलाते हैं। जब टॉर्च की रोशनी बाल्टी होकर गुजरती है तो हमें वो दिखता है। ठीक उसी प्रकार से चांद का अपना रोशनी नहीं है, लेकिन सूरज की रोशनी जब धरती की ओर आ रही होती है तो उस पर पड़ने की वजह से हमें चांद भी दिख जाता है। चांद का अपना रोशनी नहीं होता, सूरज की रोशनी में ही चमकता है। आज हम यहीं तक रहने देते हैं और अगले क्लास में हम आगे कवर करेंगे टॉपिक नंबर प्लैनेट को, पेज नंबर 19 पे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अलोंग विद दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू हैव टू मेक A question number A only, multi choice question you have to make. Thank you.